till date we have discussed some portions of introductory pharmacology. Now we'll be discussing about different drugs. In general pharmacology, we'll study pharmacokinetics as well as pharmacodynamics. So before studying the main content of general pharmacology, let's have a brief review from where these drugs are obtained. जितने भी drugs हम use करते हैं आज के डेट में, उनकी सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैसे उनकी मैन्युफैक्चर होती है, कैसे सिंथेसिस हो रहा है या किसी नेचुरल सोर्स से आ रहा है या क्या है। तो आज के डेट में कोई भी मेडिकल स्टोर में आप जाएं तो देखेंगे कि बहुत टाइप के ड्रग्स पड़े हुए हैं वहाँ पे। आप हर एक के लेवल देखें तो हो सकता है आपको मोर देन थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस ऑफ ड्रग्स मिलेगा। तो उनके जो सोर्सेज हैं, इफ वी क्लासिफाई ऑल द ड्रग्स, वी कैन क्लासिफाई देम इन टू ब्रॉड हेड्स. One is drugs which are obtained from natural sources. Natural sources like which are derived from some plants or from some animals or from some microorganisms like bacteria, fungi, or some other microorganisms which are obtained from some mineral sources, say for example some rocks or from soil or from anything. So these we can say that these are the naturally produced drugs. Or the second class is that of synthetic drugs, which are man-made, which will be synthesizing or manufacturing in our laboratory. Nowadays, a lot of pharmaceutical companies are there, production houses are there, which manufacture a lot of synthetic chemicals. They make reagents 1, 2, 3 and make some product, and that after refining the drug is manufactured. So nowadays the synthetic source is a big source, and what is the we'll be comparing these sources and we'll be discussing the merits and demerits of these sources. So in the synthetic sources there are some compounds or drugs which are purely synthetic in nature, which are which are 100% synthesized in the laboratory. And there is another source which are semi-synthetic in nature. What is the meaning of semi-synthetic? That means some natural product or natural product is being modified, and being modified by either hydroxylation or by aromatization or by cyclization or by any chemical reaction, but the parent compound is a natural compound. In that case, it will be called as semi-synthetic. Well, if we have studied history of pharmacology and tracing back some 27 years to 3000 years back, at that time pharmacology was called materia medica, and even in the primitive stages, people were not knowing these synthetic drugs. They were using only the natural drugs, and drugs obtained from some plants or the animal sources or from some mineral sources. Even the microorganisms and how to obtain drugs from these microorganisms, at that time the science was not developed. So now the science is advancing. We are having a lot of additional knowledge nowadays, and apart from these synthetic drugs, a lot of new advancements in drug sources have come up. One important source is gene therapy. Say, for example, there are so many genetic disorders in which there is some defect in the genes, or and that genetic disorder normally is incurable. By giving these drugs, by giving these natural sources drugs or the synthetic or semi-synthetic drugs, you cannot cure those diseases. You might be knowing a lot of these genetic disorders, and those genetic disorders can only be corrected by correcting their genes. Now genes are or wrong gene or incorrect gene is present in each and every cell of our body, and to correct that wrong gene or in each and every cell or in majority of the cells in one organ is near to impossible. So the concept of gene therapy was evolved, and now we are by means of some vehicle, some genes are being inserted in the body by means of some vehicle. That vehicle will
try to repair or try to correct the gene or the product of the gene by which that genetic disorder is there. So we'll be discussing the gene therapy as a special assignment. In last class, we had given, in last previous classes, 2 or 3 classes back, I had given some 5 assignments to 5 students. So just I'm stopping the screen share and I would like to see your faces again. So who were there and what topics were? किसको क्या क्या दिया था? अपना नाम बताएगा, टॉपिक बताएगा. Sir, Shalini Kumari, the topic Yes. was proteomics. Proteomics. Okay. Then second. Kumari Soni, my topic was pharmacogenomics. Pharmacogenomics, right. Then जीनत, अपना वीडियो ऑफ कर लो बच्चे, तुम्हारी आवाज कट रही है. वीडियो ऑफ करके बोलो. अपनी वीडियो ऑफ कर लो और देन आंसर. यस. नैनो मेडिसिन है मेरा. नैनो मेडिसिन, राइट. और किसको है? फोर्थ एंड फिफ्थ 2 लोग और हैं. Sir, fifth है nutraceuticals. Yes. Sir, nutraceuticals. किससे मिला था? मधुदर्शी. Yes, sir. ओके. अपना प्रोफाइल नेम में अपना एडमिशन नंबर भी ऐड करेंगे बाद में, ठीक है? ओके. और किससे मिला था? फिफ्थ वन. हु वाज द फिफ्थ वन? Govind. Yes. He is not किससे here. मिला था? Who had accepted? Govind, sir. गोविंद कहाँ? नहीं है. Absent है sir. नहीं है, आज एब्सेंट है. ओके, ठीक है. 2 और नेट. यस प्लीज. गोविंद मैसेज कर रहा है, कनेक्ट सर डिस्कनेक्ट हो गया, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैसेज कर रहा है. मेरे पास तो रिक्वेस्ट नहीं आया है. मैंने डिफॉल्ट सेटिंग कर रखा है. कोई भी जिसको लिंक भेजा कभी भी ज्वाइन कर सकता है. वो मेरे पास नहीं आता, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाता है. ठीक है. आपके पास 1 वीक और टाइम है. मैं टाइम आपको 5-7 डेज पहले अनाउंस करेंगे कब प्रेजेंटेशन होगी उसकी. 2 और नए टॉपिक्स हैं. कौन एक्सेप्ट करेंगे आज उन 5 के अलावा? खुद से नाम बोलो, अदरवाइज आई हैव टू आस्क. यस. Deepshika, you want to say anything? Yes. Deepshika, you prepare on gene therapy. Why I am giving these topics, you try to listen. Well, these are new advancements in pharmacology, and these, if I focus a lot of time, if I devote a lot of time on these topics, we cannot cover our main course content. So the another approach you study, the student who will be studying will be gathering a lot of information from different sources, and internet is one of the important source. And you give a presentation of not more than 10 minutes. Strictly, it should be of 10 minutes by watch. And thereafter, there will be 5 minutes discussion time. Other students can ask the questions. If there are a lot of questions, then we can increase the time. And we'll be fixing one special class for the presentation of those topics. So Deepshika, you note the topic gene therapy. And Yes, who is the next student who can take up the next topic? Whatever advancements in pharmacology is going there, I'll be giving in the form of assignment so that you can have a good knowledge of those things. जो basics हैं वो मैं बताऊंगा आपको. Yes, please. Boys की participation कम है. Prince note down करो. Next topic, biopharmaceuticals. ठीक है. चलो आज के लिए 2 टॉपिक्स हैं. आप नोट करते रहिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए. मैं कुछ टाइम के बाद बोलूंगा कि किसका प्रेजेंटेशन रेडी है. वो प्रेजेंटेशन पहले मेरे को मेल करेगा, मैं उसको करेक्ट करूंगा, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तब वो प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो आपके पास, आप ऑल 7 के पास 1 वीक का टाइम है. आपने प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दीजिए. जिसका प्रेजेंटेशन फाइनल हो जाएगा मेरे को व्हाट्सएप कर दे. ठीक है. चलो अब आगे चलते हैं. So we were discussing the different sources of pharmacology. So
this gene therapy is nowadays has become it is also one source of drug. Say for example, if you are inserting some genes to any person who is having some genetic disorder, and that genetic disorder is being cured by administration of those genes, now those genes will be treated as a drug because it is being used. What was the definition of drug? It is any chemical substance other than food which is used or intended to be used for modifying the physiological or pharmacological action functions of the body. So पर्पस तो है ये क्योर कर रहा है, तो इसको भी ड्रग के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया. नेक्स्ट कैटेगरी इज बायोफार्मास्यूटिकल्स. सो बायोफार्मास्यूटिकल्स का दो वर्ड है. बायो मींस बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑब्टेन हो रहा है, एंड फार्मास्यूटिकल है कोई ड्रग है. तो जो बायोलॉजिकल सोर्सेज से ऑब्टेन हो रहा है, जैसे कि जिसमें कोई बायोटेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो. बायो मींस बायोटेक्नोलॉजी से वो आया है. जैसे वैक्सीन्स हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स हैं. पहले वैक्सीन जो बनते थे वो लाइव एटेन्यूएटेड हो, एक बैक्टीरिया वायरस को लेकर के उसको अनफेवरेबल होस्ट में 10 100 80 बार मसाज किया, उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई और उसको वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट कर देते. उससे डिजीज नहीं होगा लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी बनी हुई है, तो वो एंटीबॉडी टाइटर इंड्यूस करेगा. लेकिन ये रिस्की है. पैथोजेनिसिटी कभी भी वापस आ सकता है. तो अब मोर सेफ जो वैक्सीन्स हैं उनके प्योर एंटीजेंस को एक्सट्रैक्ट करें. और एंटीजेंस क्या है? अगर कुछ प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, उन सीक्वेंसेस को हम एम्पलीफाई करके कुछ होस्ट में हम ग्रो करके, कुछ माइक्रोब में अगर ग्रो करके उनको करें, तो इस तरीके के जैसे आज के हेपेटाइटिस के जो वैक्सीन्स हैं वो प्योरली उसमें कोई वायरस भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन्स हैं. वो और जो एंटीजेंस हैं वो हैं. और तो वैसे है वो सारी चीजें हैं. बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं. इंसुलिन है. इंसुलिन आप जानते हो कि बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से ऑब्टेन होता है. तो आइदर किसी ह्यूमन या एनिमल के बॉडी के पैंक्रियाज से ही होगा. तो जो इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं, वो इंसुलिन एक प्रोटीन है. उसके प्रोटीन के जो सीक्वेंस है, जो वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेफरेबली एशेरिचिया कोलाई को ट्रांसजेनिक बना के उसमें इंपोर्ट कर दिया और वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और उससे हम कल्चर कर ले रहे हैं. तो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हुआ ना, जीन को कट करके दूसरे में ऐड किया, एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया और उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वो भी उस टाइप का वैक्सीन को भी या ड्रग को हम बायोफार्मास्यूटिकल बोलेंगे. थोड़ा सा सोर्सेज को वन बाई वन थोड़ा डिटेल में देखें. जो प्लांट सोर्सेज हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सोर्सेज हैं और बोल सकते हैं ओरिजिनल सोर्सेज हैं, सबसे पहले के सोर्सेज हैं. और जिनको हम कलेक्टिवली मेडिसिनल प्लांट्स हम बोलते हैं. ठीक है, ले रहा हूँ. तो ये सारे मोस्ट एंशिएंट सोर्सेज हैं. और देखें अब प्लांट्स में जो है, प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होगा एज फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टी. तो बहुत सारे पार्ट यूज होते हैं. किसी प्लांट का रूट है, किसी का राइजोम है, किसी का बार्क है, किसी का लीफ है, किसी का फ्लावर्स हैं, किसी का फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं. तो वन बाय वन देखते हैं. जैसे एक रूट है, बोलते हैं रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा बोलते हैं इसको. तो सर्पगंधा के जो रूट्स हैं, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. इसके कहने का मतलब है कि कौन सा पार्ट यूज करेंगे. हाउ वी कैन डिसाइड? वी विल नॉट डिसाइड. जिस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में उसके फाइटो इंग्रेडिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स मैक्सिमम कंटेंट में होंगे, वो हम यूज करेंगे. तो ये वर्षों से आयुर्वेदिक मेडिसिन में लोगों ने बाय प्रैक्टिस ये नॉलेज हमारे पास है. और इस वजह से डिफाइंड है कि इसका स्टेम, इसका बार्क यूज होना है कि किसका रूट है. तो इस प्लांट का रूट एक एग्जांपल देख के चले कि इसका रूट यूज होता है. नेक्स्ट देखें कुछ प्लांट्स के राइजोम, जैसे कि जिंजर है, टर्मरिक है, इनके राइजोम है, ये राइजोम यूज हो रहे हैं. फिर बहुत सारे प्लांट्स के बार्क हैं, जो बार्क, जो स्टेम बार्क समझ रहे हैं, जैसे कि सिंकोना बार्क है. फिर है कटैचू, जो कत्था हम खाते हैं, वो भी एक प्लांट है, कैसिया कटैचू का बार्क से ऑब्टेन होता है. फिर इसके अलावा फिर है बहुत सारे प्लांट के जो लीव्स में है, लीव्स में उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी बहुत है. जैसे कि एक है एट्रोपिन है, एट्रोपा बेलाडोना प्लांट है, इसके लीव्स में बहुत ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी होती है. कोकेन एक है, ड्रग है, जो एरिथ्रोजाइलम कोका के लीव्स में ऑब्टेन होता है. तो इसके अलावा कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स हैं, जैसे एक डिस्टालिस पर्प्यूरिया है, कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड है ये डिस्टालिस, इसके फ्लावर्स में होते हैं.
क्रिसेंथेमम सिनेरिफोलियम जो है आपका इसके जिससे पायरेथ्रॉइड से या सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड्स ऑब्टेन होते हैं। ये पायरेथ्रम जो इसमें ड्रग मॉलिक्यूल है इसके फ्लावर्स में ज्यादा अमाउंट में होता है। फिर फ्रूट्स में है जैसे कि पपाया का फ्रूट पल्प है उसमें पेपेन है आपको रिच अमाउंट में। फिर जो आपको ये सौंफ है, सौंफ का जो सीड्स हैं, सीड्स नहीं इनफैक्ट वो फ्रूट है, उसको तोड़िएगा तो 2-3 छोटे छोटे सीड निकलेंगे, तो वो इन फ्रूट्स में है। तो कहने का मतलब कि प्लांट्स के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है और जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है वो यूज करते हैं। जैसे सीड्स हैं, एक प्लांट है स्ट्रिक्नोस्नक्स भूमिका, इसके सीड्स में जो ऐसे गोल है सूख करके चपटा हो गया है, इसमें स्ट्रिक्नीन होता है। फिर है मेथी, मेथी आप सुने होंगे, मेथी की सीड है, इसका वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होता है, तो इसके सीड्स में इसके एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो ये सारे तो प्लांट सोर्सेज हैं। एक दो एग्जांपल दिया, रिच बिग लिस्ट है और ये लिस्ट स्टिल ग्रोइंग है, तो बहुत ज्यादा नहीं उस पर फोकस करेंगे। हमें सिर्फ ये जानना है कि प्लांट्स आज के डेट में भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और पूरी आयुर्वेदिक मेडिसिन में मेजॉरिटी ऑफ दी जो मेडिसिन है वो प्लांट सोर्सेज ऑब्टेन हो रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ एनिमल सोर्सेज भी हैं, जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, गोनाडोट्रोफिन्स हैं। ये सारे हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मैन्युफैक्चर करना आसान नहीं है। इंसुलिन को तो खोज लिया है क्योंकि डायबिटिक का बहुत है, लेकिन बहुत सारे ये सारे जो हैं वो ऑक्सीटोसिन जो है अभी भी जो है पिट्यूटरी का ब्रेन एक्सट्रैक्ट से ऑब्टेन करके जो स्लाउटर हाउसेज हैं, बफलोज या कैटल, उनके स्लाउटर हाउसेज से वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट आता है ऑक्सीटोसिन या फिर। तो कहने का मतलब कि ये सारे बेसिकली किसी न किसी एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है, तो एनिमल सोर्सेज के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे विटामिन हैं जैसे कॉड और शार्क लिवर ऑयल हैं जो विच आर रिच इन विटामिन ए और डी, वो भी एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन हो रहे हैं। कुछ एंटी सीरा है। एंटी सीरा क्या हुआ? एंटी सीरा मीन्स सीरम कंटेनिंग सीरम हैविंग एंटी सीरा क्या हुआ? सीरम हैविंग, yes please anybody, what is anti serum? Sir, serum have antibody sir. Antibodies against snake venom, ठीक है। तो yes, अब वो स्नेक को, किसी हॉर्स को थोड़ा थोड़ा डोज दे करके उसमें एंटी सीरा रेज करते हैं, उसका ब्लड से फिर प्यूरिफाई करके कॉन्सेंट्रेट करके रहते हैं कि अगर किसी को सांप काट ले तो ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। उस तरीके से अदर डिजीज कंडीशंस का भी कर सकते हैं, वो है। फिर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, हिपेरिन है, लिवर एक्सट्रैक्ट्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ब्लड इवन प्लाज्मा की भी जरूरत, ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारे एनिमल सोर्सेज ये ड्रग्स है। बहुत सारे एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है माइक्रोबियल सोर्सेज। माइक्रोबियल सोर्सेज में इनफैक्ट आज के डेट में काफी इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं, जैसे लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामिसिन है, नियोमाइसिन है, अदर जो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो रहा है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज के डेट में इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स अगर इनका जिन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये एक्ट करते हैं, अगर उनका इन्फेक्शन हो तो ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए। फिर बहुत सारे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, जिनसे हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वैक्सीन भी एक ड्रग हुआ। और सोर्स जो है माइक्रोबियल सोर्सेज हैं। बहुत सारी ईस्ट हैं जो ड्राइड ईस्ट एज सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, तो ये सारे माइक्रोबियल सोर्सेज हैं। फिर मिनरल सोर्सेज हैं, रॉक्स मिनरल्स हैं, जो मिनरल मिक्सचर्स हैं, जो एंटासिड्स हैं, सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड। फिर डायरेटिक में यूज हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, हिमैटनिक हम आयरन एक्सट्रैक्ट, आयरन प्रिपरेशन यूज करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट में आयोडीन यूज करते हैं। मिनरल ऑयल्स हैं, लिक्विड पैराफिन, अदर्स हैं। तो डिफरेंट डिजीज कंडीशंस में डिफरेंट मिनरल्स भी यूज करते हैं। तो वो मिनरल्स भी एक ड्रग हुआ आज के डेट में, और ये मिनरल सोर्सेस है। और इसके अलावा एक बिग आज के डेट में अगर पूछा जाए आपको, चूंकि 1-1.5 मिनट बचा हुआ है, अगर क्लोज होता है तो फिर से ज्वाइन करेंगे फॉर 10 मिनट्स, तो हम कंपाइल कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे इस क्लास को। आज के डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है और सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल एक मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो मैक्सिमम ड्रग्स जो हैं, जो टैबलेट्स, इंजेक्शंस, वाइल्स पड़े हुए हैं, मेजॉरिटी सिंथेटिक सोर्स के।
वाई सिंथेटिक सोर्स का क्यों इतना ग्रो हो रहा है, वाई? कोई बता सकता है? शालिनी बता सकते हो वाई सिंथेटिक सोर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? सर वो प्योर फॉर्म में होता है इसलिए। नहीं, प्योर फॉर्म में तो हम दूसरे का भी कर सकते हैं। पेनिसिलिन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो रहा है, वो प्योर फॉर्म में है। सिंथेटिक सोर्स का इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट। हमें कॉस्ट, सस्ती दवाइयां आ रही हैं, वो हम 2, 4, 5, 10 केमिकल को मिक्स करके हम बना रहे हैं। मैं यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, लॉग इन कीजिए, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। We were discussing the synthetic sources. आज की डेट में synthetic sources most important source है। इसका most important reason है कि उनका production हमारे कंट्रोल में है। हमें अभी कोविड में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का डिमांड अगर ज्यादा है, अगर वो नेचुरल सोर्स का होता तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता। उनकी जितनी सप्लाई होती उस हिसाब से उनका प्रोडक्शन होता। सिंथेटिक में हमें पता है कि फलना केमिकल को मिक्स करके इस कंट्रोल कंडीशन में हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सिंथेसाइज करते हैं, तो जितनी जरूरत है हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कोई प्लांट सोर्स का उससे ऑब्टेन हो रहा है, उसके अगर लीव से ऑब्टेन हो रहा है, तो उस प्लांट को ग्रो करना होगा, उसके लीव्स को कलेक्ट करना होगा, ड्राई करके प्रिजर्व करके उनको प्रोसेस करना होगा, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और 100% चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होगी। सेकंड जो है, उस ड्रग को पेटेंट करने के लिए, उस ड्रग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, कोई नीम का लीफ अगर बिहार में ग्रो कर रहा है, कोई मधुबनी में ग्रो कर रहा है, कोई हिमालय रीजन में ग्रो कर रहा है, तो उसमें जो फाइटोकेमिकल्स जैसा ज्योग्राफिकल क्लाइमेट में वो ग्रो करेगा, फाइटोकेमिकल्स का कॉम्पोजिशन चेंज होगा उसमें। तो आप अभी जो हिमालयन बतीसा या कोई आयुर्वेदिक ड्रग आ रहा है, वो हर एक लॉट में एग्जैक्टली सेम उसकी पोटेंसी होगी, दैट यू कैन नॉट से। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं मोर प्रेफर्ड होते हैं और हमारी कन्वीनियंस इजी है उसमें। जितना अभी यूएस गवर्नमेंट को सप्लाई करना था, तो सिप्ला ने मैन्युफैक्चर बढ़ा दी और बना करके इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अगर वो माइक्रोबियल सोर्स का होता तो हम उसको टाइमली नहीं भेज पाते या अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने में महीनों लगता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्लस कॉस्ट भी सस्ता हो जाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के जो टैबलेट्स हैं, ये सॉरी डॉक्सीसाइक्लिन के, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो माइक्रोबियल सोर्स से ऑब्टेन होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो एंड प्रोडक्ट है डॉक्सीसाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का, उसका पता हो गया कि फलना केमिकल को उसका सिंथेटिक पाथवे पता हो गया। तो आप कौन माइक्रोब से ऑब्टेन करता है? डायरेक्टली 2-4 केमिकल को मिला के बना लिया। माइक्रोब से ग्रो करने के लिए कल्चर लगाओ, कल्चर में जब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे एंटीबायोटिक्स, फिर उसमें से हार्वेस्ट करो, फिर प्यूरिफाई करो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था और टाइम ज्यादा लगता था। तो जो पहले 40-45 रुपए का एक इंजेक्शन आता था, टैबलेट कैप्सूल आती थी उसकी, आज की डेट में वो 50 पैसे का हो गया। तो मासेस में उसकी रीच, उसकी इम्पैक्ट बढ़ गई। तो ये सिंथेटिक सोर्सेज का ये एडवांटेज है। और आज के डेट में लगभग में सारे के सारे ड्रग्स जो हैं उसमें कोई ना कोई सिंथेटिक ड्रग अवेलेबल है। जैसे एंटीपायरेटिक्स है, एंटीपायरेटिक्स में आप पैरास्टामोल यूज करते हैं, इबुप्रोफेन यूज करते हैं या दूसरे हैं। बहुत सारे बार्बिचुरेट्स हैं, बार्बिचुरेट्स एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, ये पैरास्टामोल है या इबुप्रोफेन है। एनेस्थेटिक्स हैं, बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं। आज के डेट में जो आप इथेनॉल बेस्ड ये डिसइंफेक्टेंट्स एंटीसेप्टिक्स यूज करते हो, तो इथेनॉल का तो प्रोडक्शन सिंथेटिक सोर्स से हो रहा है। फर्मेंट किया उसके बाद एंजाइम कुछ डाला या कुछ वैसे चीजें, फर्मेंटेशन क्लाइमेट डाला, इथेनॉल को प्यूरिफाई किया, वो हो गया। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स हैं, बहुत लॉन्ग लिस्ट है इनकी। और आज के डेट में सबसे बड़ा ग्रुप यही है। लेकिन सिंथेटिक सोर्सेज का एक डिमेरिट है। कोई बता सकता है क्या इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है सिंथेटिक सोर्सेज का? डोजेस एक्सेप्टर जो होता है टाइम के साथ ज्यादा देना पड़ता है। ज्यादा देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है टॉक्सिसिटी। ये सारे के सारे 100% सेफ नहीं है, बहुत सेफ नहीं है।
कुछ तो सेफ है, किसी का लीवर डैमेज कोई करता है, कोई किडनी डैमेज करता है, कोई स्किन रैशेस करता है, टॉक्सिसिटी सबकी है। और जो नेचुरल सोर्सेज से हैं उनकी टॉक्सिसिटी कम है, जो प्लांट सोर्सेज के हैं या डायरेक्ट एनिमल सोर्सेज के हैं, जो किसी न किसी नेचुरल सोर्स का है, तो उनकी टॉक्सिसिटी कम है। तो एक टॉक्सिसिटी एक कंसर्न है, टॉक्सिसिटी को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे इनके ट्रीटमेंट। तो एचएस सांधु में लिखा है कि सिंथेटिक वाले लेस टॉक्सिक होते हैं नेचुरल सोर्सेज से। वो लाइन और वो मेरे को फॉरवर्ड करना है, वो स्नैप लेकर के फिर देखूंगा किस कंटेक्स्ट में लिखा है और क्या मीनिंग है, फिर उस पर कुछ कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ। फिर सेमी सिंथेटिक सोर्सेज हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज में आप बहुत सारे जो सिंथेटिक सोर्सेज के जो नेचुरल सोर्सेज के प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन, उनका प्यूरिफिकेशन टाइम टेकिंग अफेयर है और वो उनके प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। तो सारे लोग लगे हुए हैं कि भाई उसको प्योरली 100% लैब में सिंथेटिक पाथवे उसका निकाल के सिंथेटिक बना सकते, लेकिन सब में सक्सेस नहीं मिलता है। तो फिर कुछ लोग करते हैं कि चलो थोड़ा बहुत सिंथेटिक सोर्स का शुरू का कुछ कंपाउंड बना है तो उसका, या कुछ एक सिंथेटिक सोर्स थोड़ा सा लेके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लें। जैसे कि मॉर्फिन एक एग्जांपल है। मॉर्फिन कुछ ओपियम प्रोडक्ट से निकलते हैं और इनके बहुत सारे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का डेफिनेशन आपको बताएंगे थोड़े दिन बाद। और जैसे मॉर्फिन के जैसा काम करने वाले और मॉर्फिन के अपोजिट काम करने वाले बहुत सारे सेमी सिंथेटिक हैं। तो फिर इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो डायरेक्टली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो सिंथेटिक है। इसमें डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर से केमिकली ऐड किया है। डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन जो हो जाएगा वो सेमी सिंथेटिक होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो नेचुरल होगा। फिर इसके अलावा बहुत सारे पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, जो प्योर नेचुरल पेनिसिलिन है, उसकी बहुत हाफ लाइफ बहुत कम है, 30 मिनट होता है। तो इसलिए जो पेनिसिलिन, जो ओरिजिनल पेनिसिलिन इंजेक्शन है, वो दिन में 4 बार लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लड कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर लेके 4 इंजेक्शन एवरी डे लेना होगा। दूसरा उसका साइड इफेक्ट है, बहुत ही पेनफुल होता है। अगर पेनिड्योर इंजेक्शन या पेनिसिलिन जी के इंजेक्शन अगर किसी ने लिया होगा तो कैन फील द पेन। अब 4 इंजेक्शन, सुबह इस हाथ में, दोपहर इधर, शाम को इधर, तो फिर मुश्किल है। तो फिर लोग सोचने लगे यार कुछ सेमी सिंथेटिक बनाओ, इसमें कुछ चेंज करो और जिसका हाफ लाइफ बढ़ सके, जो 24 घंटे में एक बार इंजेक्शन दे सके। तो ये सारे एफर्ट्स है, उसकी हाफ लाइफ, उसकी लॉन्जेविटी, उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, उसका थेरेप्यूटिक रेंज, इन सब चीजों को इनहेंस करने का पर्पस है। प्लस हम 100% नेचुरल पे डिपेंड न रहे, वो भी एक पर्पस है। तो सेमी सिंथेटिक सोर्सेज जो है वो धीरे धीरे मार्केट में। जीन थेरेपी के बारे में अभी ब्रीफली आपको बताया है। जीन थेरेपी बेसिकली इसका मीनिंग है, इट मींस प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ जीन फंक्शन। जो जेनेटिक फंक्शन है, जीन फंक्शंस हैं, उनको कुछ हम मॉडिफाई करें। जो जीन का बेसिक फंक्शन क्या है, जीन का फंक्शन है उसमें जो कोड्स हैं, जो कोडेड मैसेज है, वो डिकोड करें। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कोई ना कोई प्रोटीन फॉर्म होगा, और वो प्रोटीन एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, कोई रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकता है, जिससे हमारे बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं। और अगर वो कोई अल्टर्ड प्रोटीन बना रहा है, से फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन अगर वो डिफेक्टिव बन रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हीमोफीलिया या फिर वैसे डिजीज कंडीशंस में ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम उसके जेनेटिक उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को ठीक कर सके कि वो अल्टर्ड या खराब प्रोटीन बना रहा है, या सिकल सेल एनीमिया में कुछ वैसा, उस एनिमल को अगर ठीक कर सके किसी तरीके से कि नहीं, तो सारा का सारा ठीक हो जाएगा। तो यही अप्रोच है जीन थेरेपी का, कि जहाँ पे जो अल्ट्रेशन है बाय जीन फंक्शन, जीन में या तो मैनिपुलेशन करके या जीन के एक्सप्रेशन पैटर्न को अगर हम कुछ अल्टर कर सकें और नॉर्मल की ओर ला सकें, तो वो जीन थेरेपी होगा। इसमें क्या करते हैं, इट इज इंसर्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, जिसको हम थेरेप्यूटिक जीन्स बोले, जिसको हम ड्रग्स बोले, एक्सोजेनसली इनटू द एनिमल सेल्स। बाहर से हम एनिमल सेल्स में, एनिमल बॉडीज में हम उसको इंजेक्ट करते हैं बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन और बाय स्पेसिफिक टूल्स से। वो डिस्कस होगा डिटेल में। In contrast to all other drugs, this kind of therapy will impart new functions to a cell.
बाकी सारे ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स हैं, कोई ड्रग अगर हम जो ट्रेडिशनल ड्रग दे रहे हैं तो हमारे सेल के फंक्शंस को वो मॉडिफाई करता है, जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। बट दिस जीन थेरेपी एक नया फंक्शन को ऐड कर सकता है क्योंकि उसमें कुछ न्यू जीन्स आ गए हैं। तो ये एक न्यू नोवेल ट्रीटमेंट है, न्यू थेरेपी है जो जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए तभी हम जीन्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सिंथेटिक ऑफ थेरेप्यूटिक जीन्स फॉर जीन थेरेपी। तो कौन कौन से डिजीजेस आज के डेट में सक्सेसफुली क्योर हो गए हैं बाय हेल्प ऑफ जीन थेरेपी? बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी है, पार्किंसंस है, एचआईवी इन्फेक्शन, अल्जाइमर्स डिजीज, हंटिंगटन कोरिया, कैंसर, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, सारे के सारे 100% क्योरेबल। ये कोई भी डिजीज कंडीशन 100% नॉर्मल ट्रीटमेंट से क्योरेबल नहीं है। बहुत सारों में बहुत अच्छी लीड आई है, कुछ का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ है जीन थेरेपी का, कुछ में रिसर्च चल रहा है, बट इन डिसऑर्डर्स और इसके अलावा और भी लॉन्ग लिस्ट है जिसमें हम जीन थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखें बायोफार्मास्यूटिकल्स जैसे बताया था कि बायोटेक्नोलॉजिकल टूल से अगर फार्मास्यूटिकल्स हम डिजाइन करें तो उसको बायोफार्मास्यूटिकल्स बोल रहे हैं। जैसे बहुत सारे फंक्शनल ह्यूमन पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एंटीडायरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ACTH है, TSH, TRH है, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन, ग्रोथ हार्मोन, साइक्लोस्पोरिन, ये सारों को हम ये सारे हार्मोन्स जो हैं, ह्यूमन पेप्टाइड्स जो हैं, इनको हम किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बाहर में हम उसके जीन्स को अटैच करके उनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अब यस प्लीज। एक क्वेश्चन है सर, जीन थेरेपी क्या परमानेंट ट्रीटमेंट है या फिर उसको रेगुलर इंटरवल पे हमको ऐड करना पड़ेगा? This will be your homework. You search over this. कुछ एक डिजीज यस या नो में आंसर नहीं होगा। जीन थेरेपी स्टिल अंडर रिसर्च है। कुछ एक डिजीज कंडीशंस का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया है, कुछ के एक सर्टेन ड्यूरेशन तक एक सिंगल थेरेपी से ठीक हो जाता है, और ऑब्वियसली बहुत सारे इस तरीके के डिसऑर्डर्स का एक कंटिन्यूअस फॉलोअप होता है। जैसे अगर कैंसर्स का ट्रीटमेंट हो तो एक बार सर्जरी हो जाए, फिर कैंसर सेल वापस तो नहीं आ रहे हैं, तो पहले एवरी मंथ, फिर 6 मंथ्स, फिर देख रहे हैं 6 मंथ्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर बोलेंगे 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 4 साल, फिर 10 साल। फॉलोअप तो कंटिन्यूअस करना पड़ता है। हमारे पास ऐसे नहीं कंक्लूजन्स है जिसके बेस पे ये कह दें कि एक बार में श्योर शॉट हो जाता है। बहुत सारे डिजीज कंडीशंस जो है, जैसे HIV है, जीन थेरेपी से सक्सेसफुली 100% क्योरेबल नहीं है। कुछ एक लीड्स मिले हैं, पीपल आर ट्राइंग। कुछ एक डिजीज कंडीशंस हैं जिसमें 1-2 एडमिनिस्ट्रेशन में 100% क्योर हो गया, कुछ में फॉलो अप करना पड़ता है। इस तरीके से इसका है, क्लियर कट नहीं कर सकते कि एक में ठीक हो जाएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तो जीन थेरेपी का ही पार्ट है ना सर? बोन मैरो जो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो तो जीन थेरेपी का ही पार्ट है ना सर? एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर किया जाए तो शायद परमानेंट होता है। उसमें भी फॉलो अप है, उसमें भी रिजेक्शन के भी ये हैं। एग्जैक्ट वो जीन थेरेपी का 100% पार्ट नहीं है, न्यू फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। सारे इसमें कवर्ड, मैंने जो जितने भी सोर्सेज हैं उसमें सारे के सारे कवर्ड नहीं हैं। जो डिफिशियंसीज हैं, ये जीन थेरेपी स्पेसिफिक जीन्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। बोन मैरो थेरेपी, जो बोन मैरो सिंथेसाइजिंग मैरो है, जिनकी मैरो में डिफिशियंसी है, वो करके ये करते हैं। तो एग्जैक्ट जीन लेवल पे मैनिपुलेशन नहीं है, जीन थेरेपी का पार्ट नहीं बोलेंगे उसको। सम न्यू सोर्स ऑफ ड्रग है, न्यू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, जीन थेरेपी से हटके है थोड़ा। जीन थेरेपी में कुछ स्पेसिफिक जीन्स, नॉट द होल जीनोम, उनको हम कैप्चर करके उनको हम एक पर्टिकुलर व्हीकल में अगर
से फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक पर्टिकुलर 7 अगर मिसिंग है किसी में और उससे कोई एनोमली है तो उसके जीन्स को सिर्फ इंसर्ट करेंगे। बोन मैरो थेरेपी में थोड़ा हटकर है, इसीलिए एग्जैक्ट पार्ट नहीं इसको बोले कि जीन थेरेपी का पार्ट है, हाँ सिमिलर है उनका कुछ इस टाइप का अप्रोच, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्पैरिजिनेज है, डीनेजेज है, एरिथ्रोपोएटिन, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो डायरेक्टली हम सप्लीमेंट करते हैं। अगर किसी को कम हो रहा है तो अब ये कहाँ से हम ऑब्टेन हम कहाँ से करेंगे, तो ऑब्वियसली इनको भी ट्रांसजेनिक बनाएंगे। एंजाइम्स हैं, एंजाइम है तो कहने का मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन है तो कहने का मतलब किसी जेनेटिक सीक्वेंस से वो कोड हो रहा है, उस जीन सीक्वेंस को हम उठा लेंगे, ट्रांसजेनिक किसी ऑर्गेनिज्म में उसको फिक्स कर देंगे और उस ऑर्गेनिज्म का जब डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, एक्सप्रेस होगा, तो साथ में ये प्रोटीन्स भी एक्सप्रेस होंगे। नॉर्मली हम इसेर्शिया कोलाई या इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को चूज करते हैं जो फास्ट मल्टीप्लाई करे, 24 घंटे में 1 से डबल हो जाए, और उसमें से फिर प्योरीफाई करके हम इसको यूज करते हैं। प्लस उसमें एथिकल इश्यूज भी नहीं, अगर डॉग में करें, हॉर्स में करें तो एथिकल कंसर्न है। तो प्लस ये हैंडी होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होगा। तो ये सारे कुछ एक थे। अब ये सोर्सेज ऑफ ड्रग्स सिर्फ 1 क्लास का नहीं है, ये थ्रू आउट लाइफ स्टडी है। जितने भी आप ड्रग्स पढ़ेंगे समवेयर कहीं ना कहीं उसको प्लेस करेंगे, और एवरीडे कुछ नए ड्रग्स ऐड ऑन हो रहे हैं, कुछ न्यू क्लासेस भी ऐड ऑन होंगे। फार्माकोलॉजी के और भी रिसेंट बुक्स में देखेंगे तो कुछ न्यू चीजें दी हुई हैं। सिंस वी आर स्टडिंग वेटरनरी फार्माकोलॉजी, एक लिमिट करके रखा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड ऑन नहीं हुई। एक टाइम लिमिटेशन था, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज नहीं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ दिस हर्बल रिसर्च जो है वो ये प्लांट सोर्सेज आज के डेट में इस पे काफी रिसर्च ग्लोबली चल रहा है, और नाउ ऑल ओवर द ग्लोब पीपल जो है वो इन्वॉल्व है कि हमें सेफ ड्रग होना चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, हेल्थ इश्यूज नहीं होना चाहिए। कोई उसका कंसर्न ये नहीं कि हम खाएं तो हमारा वो हेयर लॉस होने लगे, तो हमारा लिवर डैमेज हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस तरीके से हर्बल रिसर्च पे लोगों का फोकस बढ़ता जा रहा है। सेकंड क्या है, माइक्रोबियल सोर्सेज से जो है वो जो एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लिमिट उनकी लिमिट क्रॉस हो रही है, अब न्यू ड्रग्स ऐड ऑन नहीं हो रहे हैं। और ये प्लांट्स जो है वो, प्लांट्स में कितने टाइप के केमिकल्स हैं, तो बहुत टाइप के केमिकल्स हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स एक प्लांट में है। एक प्लांट लीफ का जो सूप बना है, उसको लीकर जो बना है, उसको बोल सकते हैं कि वो हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स का वो मिक्सचर है वो, और हर एक केमिकल का यूनिक फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकता है, और जो कि सारे के सारे लोगों को पता नहीं है। अभी सर्वगंधा में एक रोबोल्फिया सर्पेंटाइना में एक जो है रिजर्पिन एक मॉलिक्यूल लोगों को पता है, लेकिन उसके अलावा उसमें हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हर किसी का अलग अलग, अगर अलग अलग केमिकल कंपाउंड है तो उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तो ये मेजर एरिया ऑफ रिसर्च है नाउअडेज थ्रू आउट द ग्लोब, और सारे लोग हर्ब्स के पीछे पड़े हुए हैं कि उसमें से कुछ सेफ ड्रग निकाल के। प्लस कम से कम ये है कि सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा नहीं है, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, सेफ है ये। तो अब इन प्लांट्स में कौन कौन टाइप के केमिकल्स होते हैं, इस पे जो है वो एक लेक्चर होगा नेक्स्ट क्लास में, कि ये एक आपको फ्यूचर एरिया ऑफ रिसर्च के लिए आपको फोकस करेगा कि उसमें पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं, कि उसमें एल्कलॉइड्स हैं, कि उसमें ग्लाइकोसाइड्स हैं, उसमें टैनिन्स हैं, कि रेजिन्स हैं, कि सैपोनिन्स हैं। इन सारे वर्ड्स का डेफिनेशन मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। किसको ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, किसको एल्कलॉइड बोलते हैं, किसको पॉलीफिनॉल बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम डिफरेंट जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो एक पूरा लेक्चर लगेगा। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट। यस प्लीज, एनीबॉडी? हाँ सर, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन जो है वो भी जीन थेरेपी से ही रिलेटेड होगा ना? स्टेम सेल्स देखो जितना भी कवर किया है ये आज के डेट में सारे थेरेपी को इंक्लूड नहीं कर रहा है।
इसमें लॉट मेनी मोर सो मेनी एडवांसमेंट्स हैं. लेजर थेरेपी. वी आर क्लासिफाइंग ड्रग्स, नॉट द टाइप ऑफ थेरेपी. ये सोर्सेज ऑफ ड्रग्स मैंने इस लेक्चर में बताया है. और लेजर को ड्रग के क्लासिफिकेशन में अभी तक नहीं रखा है, तो अब सारे थेरेपी का क्लासिफिकेशन बच्चे यहाँ नहीं बताया है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के क्लास में नहीं मिलेगा. जीन थेरेपी में फिर कहोगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स को जीन्स हैं, उनको हम कैप्सुलेट कर लिया. कुछ नैनो व्हीकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ही नैनो फॉर्म, एक्चुअली जो ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक्स आप पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद. हमारे ड्रग बॉडी में कोई भी ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो जाता कहाँ, अपने टारगेट पे. बॉडी में ऐसा नहीं कि हम अगर स्किन पे लगाएं तो स्किन ही टारगेट है, या हम टैबलेट खा लिए तो हमारा माउथ या हमारा स्टमक टारगेट है. स्टमक में वो डिसॉल्व होकर एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में जाएगा. हो सकता है अगर वो पेन किलर है तो हमारे जो सेल्स हैं, या फिर वो अगर सिडेटिव ड्रग है तो हमारे ब्रेन सेल्स उनका टारगेट हो सकता है. तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और अपने टारगेट पे भी जाएगा. तो कहने का मतलब है कि अगर सिडेटिव ड्रग है, डायजेपाम खा रहे हैं हम, तो उनका टारगेट तो हमारे न्यूरॉन्स है ना. तो सीधे न्यूरॉन्स में तो आप दे नहीं रहे हो ड्रग को, खा रहे हो और जा रहा डिसॉल्व होकर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. पैर में भी जा रहा, हाथ में भी जा रहा, जहां उसका कोई रोल नहीं. अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन में जा रहा है, जितना टारगेट लिया उसका 100 to 1000 प्रोपोर्शन आपका टारगेट पे पहुंच रहा है. लेकिन उस ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है, साइड इफेक्ट, जो उसका ओरिजिनल डोज लोगे उस पे होगा. जैसे मान लो कि अगर किसी को, छोटे बच्चे को दो, जो 2 साल का बच्चा, उसको लिखना नहीं आता, पेपर तो पूरा पेपर लिखेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं ये लिख रहा है वो. तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट थेरेपी है हमारा वो बड़ा क्रूड है. नहीं, हमारा टारगेट है ब्रेन सेल, और अरे पूरे बॉडी में फैलाए पड़े हैं. बहुत जस्टिफाइबल नहीं लगता, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं कि डायरेक्टली यहाँ इंजेक्शन नहीं दे सकते, वहां टारगेट पर पहुंचा नहीं सकते. तो लोग रिसर्च करने लगे कि कोई ऐसा साइंस है कि हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली टारगेट पे जाकर रिलीज करे. यस, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी एक साइंस आया कि उनको हम टारगेट पे, तो वो माइक्रोग्राम में, हम टैबलेट पैरासिटामोल टैबलेट खा रहे हैं, हम 500 मिलीग्राम खाते हैं. जो अपने टारगेट टिश्यूज पे जो जहां पे वो एक्ट करता है वो माइक्रोग्राम लेवल में काम करता है. यू सी माइक्रो कितना हुआ, 10⁻⁶, 10 मिलियन टाइम्स लेसर कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर रहा है. ले कितना रहे हम, 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम. टॉक्सिसिटी तो आधा ग्राम का होगा ना, लिवर डैमेज तो आधा ग्राम से होगा. अगर हम किसी उपाय से, आज के डेट में नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से एक एंटी फंगल ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, और ये वेरी गुड एंटी फंगल एजेंट है. जितने भी फंगल इन्फेक्शन है ऑलमोस्ट सबको मार देता है, लेकिन ये हाईली टॉक्सिक है. और टॉक्सिसिटी की वजह से इसको लोग यूज नहीं करने लगे, क्योंकि सेलुलर टिश्यू डैमेज होता था. फिर जब नैनो टेक्नोलॉजी आया तो लोग यूज करने लगे, क्योंकि एक जहर, एक पॉइजन को भी एक लिमिट से ज्यादा डाइल्यूट कर लें, अगर उसको नैनोग्राम लेवल पे लें तो उसका कोई पॉइजनस असर नहीं होगा. तो एम्फोटेरिसिन को नैनो मॉलिक्यूल्स में, नैनो व्हीकल्स में फॉर्मुलेट किया और डायरेक्टली जो टारगेट है वहां जाके रिलीज किया. टॉक्सिसिटी भी नहीं हुआ, ट्रीटमेंट भी होने लगा. तो अब न्यू फॉर्म्स ऑफ थेरेपी आ रहे हैं डे बाय डे. हम इस क्लास में सिर्फ सोर्सेज ऑफ ड्रग डिस्कस कर रहे थे कि ड्रग के सोर्सेज हैं, जितने ड्रग्स हैं सिर्फ उसी से ट्रीटमेंट नहीं होता है. ट्रीटमेंट सो मेनी वे से हो सकता है. हीट थेरेपी से भी ट्रीटमेंट हो सकता है. कुछ नहीं, गर्म पानी से सेक दिया, वो ड्रग तो नहीं है ना. तो हम ड्रग के सोर्सेज डिस्कस कर रहे थे. यहाँ पे इस क्लास को कंक्लूड करेंगे, और कुछ क्वेश्चन है तो टेकअप कर सकते हैं, एक दो. सर, इसमें एक लाइन लिखा था सिंथेटिक ड्रग्स का. Synthetic drugs that are chiral can also be produced as single active enantiomer products which may be therapeutically superior. आप एक काम करना, जो ये क्वेश्चंस हैं उनके स्कैन व्हाट्सएप ग्रुप में डालना विद द क्वेश्चन. मैं उसको देख करके, चूंकि आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो बहुत टाइम नहीं लूंगा, आप वहां पे डालना, फिर विल टेक अप योर क्वेश्चंस. और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आपको स्टार्ट नहीं करेंगे.
Okay, okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.